add some ice cubes in the glass of water, the ice will float on the water. And another thing, that water has a maximum density at 4 degrees Celsius. Why it happen? When we will increase the temperature, like temperature is 0 degrees Celsius, when the water has a cage like structure, means all the water molecules are associated with each other, or you can say combined with each other, forming hydrogen bonding. Now we are increasing the temperature. When we will increase the temperature, what will happen? Due to this temperature, the hydrogen bonds will break. And when the hydrogen bonds will break, the molecules of water will come close to each other. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से थोड़ा ज्यादा दूर थे वो, जिसकी वजह से वेकेंट स्पेस आ गया था बीच में. बट व्हेन दिस हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. then again we are increasing the temperature 2 degree, 3 degree, up to 4 degree. All the hydrogen bonds will break and the molecules are coming close to each other. Because molecules are coming close to each other, so the density will increase. But after 4 degree, now what will happen? Because up to 4 degree, now all the hydrogen bonds has been broken down. अब कोई हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें बचा नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ वट एवर अमाउंट ऑफ एनर्जी वी विल गिव to increase the temperature up to 5 degree or 6 degree, now this temperature will increase the kinetic energy of the molecules. अभी तक तो जितनी भी एनर्जी दे रहे थे वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आ रही थी, लेकिन अब जो एनर्जी दे रहे हैं वो क्या हो रही है? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, ड्यू टू विच द मॉलिक्यूल्स विल गो far from each other and density will decrease. Means up to 4 degree only the density will increase, and after that density start decreasing because kinetic energy will increase. So we can say that water has a maximum density up to 4 degrees Celsius. उसके बाद वो आप कितना भी टेम्परेचर दो, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी. And as I have told you, this property is very useful for aquatic life. Why it is useful? Because in winter season the upper layer of the sea water freezes, है ना, अपर लेयर फ्रीज हो जाएगी. लेकिन जो हैवी वाटर जो है, जो फ्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि जो अर्थ के नीचे का टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली वार्म होता है, तो नीचे का जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होगा. वो फ्रीज नहीं हो रहा है और हम बोल रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज्यादा होती है. तो इट मीन्स जो हैवी वाटर है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो तो नीचे नीचे रह जाएगा, और जो लाइटर आइस है वो ऊपर आ जाएगी. और वो जो लाइटर आइस है वो ऊपर एक लेयर सी बना लेगी. मतलब एक इट विल प्रोवाइड अ थर्मल इंसुलेशन फॉर द वाटर बिलो इट. जो नीचे का वाटर है उसको वो इंसुलेट कर देगी, एक थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करेगी और उसको फ्रीज नहीं होने देगी. जिसकी वजह से क्या होगा? द सी एनिमल्स कैन लिव इन दैट वाटर नॉर्मली एंड कैन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम दैट वाटर. नीचे का वाटर फ्रीज नहीं होगा तो आराम से सी एनिमल्स जो हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नॉर्मली सर्वाइव कर पाएंगे. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो सारा का सारा वाटर फ्रीज हो जाता, तो हमारे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो मर जाते सब आइस में. लेकिन क्या होता है, आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर वाली लेयर में एक इंसुलेशन, एक लेयर सी बना लेते हैं, जिसकी वजह से ब्रेक करके जो टेम्परेचर है वो नीचे नहीं जा पाता. यानी नीचे का जो टेम्परेचर है वो वार्म ही रहता है, और वो वाला जो पोर्शन है वाटर का वो फ्रीज नहीं होता है. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज टू क्वेश्चंस, that why ice float on the water, and why the water has a maximum density at 4 degrees Celsius, and how it is useful for aquatic organisms. After that, physical properties of water. We know that water is a liquid with freezing point of 273.2 Kelvin or 0 degree Celsius, and boiling point 100 degrees Celsius or 373.2 Kelvin. Water has a maximum density of 1 gram per centimeter cube at 400 degree Celsius. Water form the hydrogen bonding. That is why water molecule exist as associated molecules. Like आप लोगों ने बायो में पढ़ा है ना, ईस्ट कॉलोनीज बनाकर रहता है ना. तो बायो में हम जिसे कॉलोनी बनाना कहते हैं, केमिस्ट्री में हम उसे एसोसिएटेड फॉर्म कहते हैं. सो बिकॉज वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सो दैट इज व्हाई वाटर एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. ग्रुप की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है. H2ON लिखेंगे आप इसको. Water is polar in nature, we all know, and its dipole moment is 1.84 dB, and it has a great solubility because of high dielectric constant value. That is why it is also called as a universal solvent.
Now we will see the chemical properties of water. So the first property is stability of water. Water is a very stable compound. It does not dissociate into its elements even at a very high temperature. So this is we can say that it is having high negative uh, enthalpy of formation. And at 1500 Kelvin, even if you will give the temperature of 1500 Kelvin to water, then it will break down into hydrogen and oxygen. But first we need to convert the water in the gaseous state, and then we will give 1500 Kelvin temperature to it, and it will break down into its elements. बट ये जो इसका डिकम्पोजिशन है, ये बहुत कम परसेंट में होता है, पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाता इतने टेम्परेचर देने के बावजूद भी. तो फिर पूरा डिसोसिएट कैसे होगा? इफ वी ब्रेक डाउन द वाटर into its constituents, we need to pass the electric current to the water, then it will break down into hydrogen and oxygen completely. Hydrogen we can collect at cathode and oxygen we can collect at anode in this process. Second, we are saying that water is amphoteric in nature, means it is having acidic properties also and basic properties also. We know that water has a property of self ionization, means if two molecules will water, if there are two molecules of water together, so they both will react and they will get ionized, they will break down into their ions, they will give hydronium ion and hydroxide ion. So hydronium ion, this is the indication of acid nature, and hydroxyl ion, this is the indication of basic nature. So because it is giving both the things, so we can say that it is amphoteric in nature. Ionic constant of water, means Kw, is equivalent to the concentrations of product, that is the concentration of hydronium ion and the concentration of hydroxyl ion, and it is always equivalent to 1 into 10 to the power minus 14. This value is fixed, okay, at 298 Kelvin, means at a particular temperature. If we increase the temperature or if we decrease the temperature, then value can change. But if the temperature is fixed, that is room temperature 298 Kelvin, then this value will also remain same, that is mole square liter square. Liter per square नहीं होता, liter square ही होता है ये, यहाँ पे चेंज कर लेना, माइनस नहीं आएगा. Then we will see some reactions which will prove that water is acidic in nature as well as basic in nature. First reaction is with acid. So when water react with acid, it is giving hydronium ion and chlorine ion. Chlorine ion, this is इससे हमें कोई मतलब नहीं है, but we will see here hydronium ion. So hydronium ion दे रहा है ये, तो it means यहाँ पर water कैसा behave कर रहा है? बेस की तरह. Why? Because वो क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है. तभी तो हाइड्रोनियम आयन दिया उसने. तो हाइड्रोजन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला यानी प्रोटीन को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? बेस, है ना? तो इट मींस ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर? बेस. बेस की तरह बिहेव कर रहा है. ठीक. अब अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं बेस के साथ, बेस के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या हो रहा है? एक मिनट. यहाँ पर इसने क्या किया? हाइड्रोजन ने, वाटर ने अपना एक हाइड्रोजन आयन, हाँ, इससे ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. देन हेयर बेस के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, वाटर का बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? अमोनिया. सपोज अमोनिया, हमें पता है सबको कि एक बेस है. अमोनिया के साथ हमने वाटर का रिएक्शन कराया, तो वाटर ने अपना एक हाइड्रोजन आयन दे दिया. किसको दे दिया? अमोनिया को. ठीक है. अमोनिया ने क्या किया? हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया. तो अमोनिया ने अगर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया है, तो इट मींस ये बेस है. तो अगर ये बेस है, तो ये क्या हुआ? वाटर, है ना? यहाँ पर एसिड ने क्या किया? इसने क्या किया था? एक्सेप्ट किया था, तो ये बेस हो गया था. यहाँ पर अमोनिया ने एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन आयन, तो ये बेस हो गया. तो इफ इट इज बेस, देन इट विल बी एसिड ओनली, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनता है ना? तो यहाँ पर एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. तो इन दोनों रिएक्शन से ये प्रूव हो जाता है कि water can behave as an acid also and can behave as a base also. There are so many other reactions also, but these are the very simple reactions. So वैसे तो दोनों की तरह बिहेव करता है, बट वाटर जो है एक्चुअली न्यूट्रल होता है. लिटमस पेपर पर इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7. Then oxidizing and reducing nature, water has the ability to oxidize also and to reduce also. दोनों की तरह ये behave करता है. We can see some reactions here.
यहाँ पर देखो, वाटर जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है या वाटर जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, रिमेंबर दैट किसी भी मेटल के साथ, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, पोटेशियम है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता और हाइड्रोजन रिलीज हो जाता। बट हियर आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ अमोनिया, सॉरी सोडियम। जब भी सोडियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कोई भी एलिमेंट जब अपनी एलिमेंटल स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है। और यहाँ पर हम देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1। ये 0 और 1 कैसे आया, इसमें आप कंफ्यूज मत होना अभी, ये हम जब रिडॉक्स करेंगे इसके बाद तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे तो रिडॉक्स पहले ही करना था, बिकॉज ये छोटा चैप्टर है, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड अर्लियर, एंड आपको न्यूमेरिकल करने के लिए टाइम चाहिए था ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सोडियम का ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर। सो इट मींस वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता है ये कि अगर किसी रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो जो दूसरा रिएक्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वन मोर एग्जाम्पल, carbon when reacts with water it forms carbon monoxide and releases hydrogen. So carbon का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो वाटर विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन रिड्यूसिंग के एग्जांपल्स देखो, फ्लोरीन के साथ अगर वाटर का रिएक्शन कराएं तो बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, इट मींस फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अगर फ्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो वाटर क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूस कर रहा है, इट मींस इसे। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स ग्लूकोज। हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ carbon in carbon dioxide is 4 and here it is 0. So here also the oxidation number is reducing or you can say decreasing. So we can say that carbon dioxide का reduction हो रहा है because of water. So that is why water is a reducing agent. Now hydrolysis. Water is a very strong